Chapter number 6, Verbs. A verb may tell us what a person or thing does. एक वर्ब हमें ये बताता है कि कोई पर्सन यानी कोई शख्स या कोई चीज़ क्या करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी laughs, द क्लॉक स्ट्राइक्स, what a person और a thing has. और वर्ब हमें ये बताता है कि कोई पर्सन या कोई थिंग क्या ऑक्यूपाई करता है. अभी हैज़ ए ब्लू कार, द विंडोज़ हैव अ वुडन फ्रेम. नंबर 3, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज़. एक वर्ब हमें ये भी बताता है कि कोई पर्सन या थिंग क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द कैट इज़ डेड, आई फील सॉरी. So definition of a verb. A verb is a word used to express an action, event or state. Three things: action, event or state. किसी कार्य, किसी इवेंट, कोई घटना या कोई अवस्था बताने वाला वर्ड एक्शन वर्ड या वर्ब कहलाता है. There are various types of verbs grouped by function: transitive, intransitive, finite, finite, non-finite, auxiliaries and modals, gerunds, infinitives and participles. So these are various types of verbs grouped by function. Firstly, we are going to talk about transitive and intransitive verbs. Read these sentences. The boy kicks the football. The boy laughs loudly. In sentence number 1, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or the subject boy to some object football. पहले सेंटेंस में एक्शन किसी डूअर से किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पास हो रहा है, मूव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रोसीड हो रहा है. द वर्ब किक्स इज देयरफॉर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. और इसी वजह से किक्स एक ट्रांजिटिव वर्ब है. और वी कैन से ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, जिसमें एक्शन पास होता है. एक्शन से मूवमेंट झलकता है. In sentence number 2, the action denoted by the verb laughs stops with the doer or the subject boy and does not pass over to an object. जबकि सेंटेंस नंबर 2 में एक्शन पास नहीं हो रहा है, एक्शन वहीं स्टॉप हो जाता है. जैसे कि हमने कहा द बॉय laughs loudly, तो इसमें एक्शन laughs मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें एक्शन में एक्टिविटी शो नहीं हो रही है, मोमेंट शो नहीं हो रहा है, पासिंग ओवर नहीं है. दैट्स वाई वी कैन से दिस इज एन intransitive verb. The verb laughs is therefore called an intransitive verb. Intransitive means not passing over. Direct object and indirect object. Most transitive verbs take a single object. ज़्यादातर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनमें एक्शन पासिंग ओवर होता है अपने साथ एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हैं. बट सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, ऑफर, प्रॉमिस, टेल एट्सेट्रा टेक 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम. जबकि कुछ वर्ब्स जो कि ये बताई गई हैं अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट लेती हैं. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स द पर्सन टू whom समथिंग इज गिवन. एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है जो कि ये दिखाता है कि एक्शन किस पर्सन पर किया गया है या कौन पर्सन है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है. एंड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो किसी थिंग का, किसी वस्तु, किसी चीज़ का नाम होता है. जैसे कि his father gave him a watch. In this sentence, the word him is an indirect object because him
shows action, him shows a person to whom this work is done. So, him is an indirect object, while a watch is a direct object because it denotes a thing, it denotes the name of a thing. He told me a secret. In this sentence, me is an indirect object and secret is a direct object. Transitive and intransitive use of verb. Before this, we are going to define a transitive verb. A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the doer or subject to an object. एक ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसमें एक्शन पास ओवर होता है सब्जेक्ट से या डूअर से किसी ऑब्जेक्ट की तरफ. एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब that denotes an action which does not pass over to an object, or it expresses a state of being as he ran a long distance. इसमें एक्शन तो है लेकिन पासिंग ओवर नहीं हो रहा. एक्शन पास ओवर नहीं हो रहा. द बेबी स्लीप्स. इन दिस सेंटेंस द वर्ड स्लीप्स is showing state. The baby sleeps. Number 3, there is a flaw in this diamond. यहाँ पर एक्शन एक being को इंडिकेट कर रहा है. Now the use of verbs, transitive and intransitive. Most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive. तो जब हम ये जान चुके हैं कि कोई वर्ब कई बार ट्रांजिटिव के तौर पे भी यूज़ होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज़ होती है, तो बजाय ये कहने कि कोई वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं और इनट्रांजिटिव हैं, हम ये कह सकते हैं वी कैन से that verbs can be used transitively और intransitively. किसी वर्ब को हम transitively और intransitively भी यूज़ कर सकते हैं. For example, use transitively in sentence number 1, the ants fought the wasps. जबकि intransitively अगर यूज़ करें इसी वर्ब को तो होगा some ants fight fiercely. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि पहले सेंटेंस में वास्प जो हैं ऑब्जेक्ट हैं, तो इसी वर्ब को ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली यूज़ किया गया है. नंबर 2, द शॉट सैंक द शिप और द शिप सैंक रैपिडली. नंबर 3, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. ड्राइवर ने ट्रेन को रोक लिया. द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली और ट्रेन अचानक से रुक गई. Number 4, the horse kicked the man and the horse never kicks. तो हमने देखा कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरीक़ों से यूज़ की जा सकती है.